Hello friends, welcome back to my channel. This is part 5 of haloalkanes. We are just left with metals, reaction of metals with haloalkanes. So you can give the title. I hope you all are taking notes. So reaction of metals with haloalkanes. Yeah, reactions with metals. Haloalkane ke reactions with metals. In part 4, whatever chemical properties we have done, in that we are left with एक छूट गया था हमारा, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स. सो रिएक्शन विद मेटल्स के लिए लाइट बंद हो गया एक सेकेंड. या रिएक्शन विद मेटल्स के लिए वी विल हैव टू react CH3CH2Br like haloalkane with a metal magnesium. Now this is giving us CH3CH2MgBr. मतलब ये रिएक्शन को अगर जनरल फॉर्मेट में करके दिखाऊं तो इट विल बी लाइक RX प्लस Mg. ठीक है, तो R और X के बीच में हैलो और अल्केन का जो बॉन्ड है उनके बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा और क्या मिलेगा RMgX. नाउ ये जो है RMgX, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. क्या कहेंगे इसको? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. नाउ द साइंटिस्ट ग्रिग्नार्ड गॉट a Nobel Prize for making this reagent. Why? Because this reagent is very useful in chemistry. Like first of all, it is an explosive agent. ये इसको dry ether के सराउंडिंग्स में, ड्राई ईथर के एनवायरनमेंट में प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, ये बहुत ज्यादा मोमेंट इट कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर इट विल एक्सप्लोड. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर हैंडलिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. सो दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is having a lot of utility. मतलब माइंस वगैरह बनाने के लिए, टनल्स बनाने के लिए we have used this as an explosive. But apart from using it as an explosive, we have also utilized it for making of primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol, carboxylic acid, then aldehyde, ketones, ethers and alkanes. तो अब थोड़ा सा इसका यूटिलिटी देखते हैं. एक टेबल बना के देता हूं. ये जो टेबल है, दिस टेबल इज गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू. मीनिंग इस टेबल पे कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही फॉर योर लेट दैट बी योर बोर्ड एग्जाम और लेट दैट बी योर एंट्रेंस एग्जाम. यू विल गेट मिनिमम वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टेबल. तो हियर वी आर हैविंग Grignard reagent. Grignard reagent, obviously it is RMgX. Now if you treat Grignard reagent with an aldehyde, especially formaldehyde, okay, I'll write formaldehyde and in bracket I'll write formaldehyde only. Only मतलब formaldehyde के अलावा और कुछ यूज नहीं करना है. Formaldehyde only. You don't use any other aldehyde. So the product which you are going to get is alcohol. Okay, that too primary alcohol. So whenever you want to prepare a primary alcohol, you will treat Grignard's reagent with formaldehyde. When you treat Grignard reagent with formaldehyde, you will get primary alcohol. If you want a secondary alcohol, then you will go for any aldehyde but not formaldehyde. समझ रहा है? कोई भी aldehyde ले लो but formaldehyde नहीं होना चाहिए. तो aldehyde except formaldehyde. ओके, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड. कोई भी आप अल्डिहाइड ले लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, तो हमको क्या मिलेगा? वी आर बाउंड टू गेट अ सेकेंडरी अल्कोहल. अगर आपको टर्शियरी अल्कोहल चाहिए तो टर्शियरी अल्कोहल के लिए वी विल बी रिएक्टिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ अ कीटोन. So if you react Grignard reagent with a ketone, you will get a tertiary alcohol. Then, yeah. Further, if you use dry ice, what is dry ice? Dry ice is carbon dioxide. Okay, solid carbon dioxide is called as dry ice. If you use dry ice with Grignard reagent, you are bound to get carboxylic acid. Carboxylic acid, of course, RC double bond OOH. This is carboxylic acid. So Grignard reagent with ड्राई आइस इज गोइंग टू गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये यूटिलिटी है. किसकी यूटिलिटी है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. और बहुत सारी चीजें इस टेबल में ऐड कर सकते हैं, राइट? लाइक वन थिंग कुड बी, इफ यू रिएक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो इट विल गिव यू एन एक्सप्लोजन. अलॉन्ग विद एन एक्सप्लोजन इट विल गिव यू अल्केन्स. सो यू विल गेट अल्केन्स when Grignard reagent reacts with water, but this is not the only alkene. इसके साथ में explosion भी होगा. Okay, so this is the table for
reacting, I mean different reactions of Grignard reagent with different reagents to give you different products. You can see the variety of products which we can get, and there are more. This table is not the end of it, but अभी फिलहाल के लिए आपको ये काफी है. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. You'll have to learn this entire table क्योंकि this is actually going to help you. Like if they asked you to prepare a tertiary alcohol in your exam using Grignard reagent, so with the help of this table you'll understand that you have to use a ketone. क्योंकि आप aldehyde यूज करके tertiary alcohol prepare कर ही नहीं सकते. आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, but आपको tertiary alcohol नहीं मिलेगा if you are using an aldehyde with Grignard reagent. Because if you use an aldehyde, you are bound to get a secondary alcohol, right? So this is the table for Grignard reagent. I'll show you the last reaction जो है explosion वाला, ये आपको आना चाहिए, मतलब as far as haloalkanes is concerned. So CH3MgBr and we'll add water to this. H2O मतलब H plus OH minus लिख सकते हैं. And when we do this, what is going to happen is this H plus, the bond is going to break from here as usual, and H plus will get attached over here. CH3 becomes CH4 and MgBr जो है, MgBr will form like this, MgBr and OH. क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, यहां पर भी मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, यहां पर भी 2 satisfy हो रही है, Br and OH. OH gets attached to magnesium, magnesium hydroxybromide. Okay, magnesium hydroxybromide. So obviously this is going to form alkane. The which alkane has been formed? Methane, but of course along with an explosion, right? तो ये है Grignard reagent का. ओके, तो अभी आगे चलते हैं हम लोग. आफ्टर देखो हम लोग क्या कर रहे थे, रिएक्शन विद मेटल्स कर रहे थे. तो एक ही मेटल रिएक्ट किया ना, कौन सा मेटल रिएक्ट किया? मैग्नीशियम. अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं जिसमें हम लोग सोडियम रिएक्ट करेंगे, और सोडियम जिसमें रिएक्ट होता है हैलोअल्केन्स के साथ में, उसको हम लोग वुड्स रिएक्शन कहते हैं. अब वुड्स रिएक्शन में आई वुड लाइक यू टू फोकस ऑन द फर्स्ट लेटर. विच इज द फर्स्ट लेटर? फर्स्ट लेटर इज डब्ल्यू, और एक्चुअली डब्ल्यू डब्ल्यू बोलते हैं, बट originally it is double U. That means U connected with another U to form a double U. Okay, so in this reaction we are also going to use the same logic, like CH3Br plus 2Na plus CH3Br in presence of dry ether, of course, क्योंकि सोडियम भी एक्सप्लोसिव है. सोडियम whenever comes in contact with water it explodes. तो जहां पर भी ऐसा एक्सप्लोजन के चांसेस रहते हैं ना, तो हम लोग एरो पे we use dry ether. तो what is going to happen over here? 2Na will combine with 2Br forming 2NaBr. So what about this U and U? ये क्यों बताया आपने? ये रिएक्शन का निमोनिक है, ये आपको रिएक्शन याद रखने में हेल्प करेगा. लाइक दिस इज अ U, one methyl group is one U and this is another U. तो U and U कनेक्ट करके क्या बनेगा? डबल U. सो CH3, अब Na और Br चला गया है, राइट? NaBr बन गया, बचा कौन है? CH3 और CH3. तो ये CH3 को कनेक्ट करो एंड यू विल गेट एन अल्केन. विच अल्केन डू यू गेट? ईथेन. दिस वाज आल्सो देयर इन 11th स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स. बट अभी हम लोग किसके अंडर कर रहे हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हैलोअल्केन. ये हैलोअल्केन है, और हैलोअल्केन के साथ में कौन सा मेटल रिएक्ट कर रहा है? सोडियम. सो दिस इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन. अच्छा, सेम वुड्स रिएक्शन में अगर सोडियम की जगह पे आप जिंक ले लो, तो ये रिएक्शन का नाम चेंज होके बन जाएगा फ्रैंकलिन रिएक्शन. वुड से क्या बन जाएगा? फ्रैंकलिन. बाकी सब सेम रहेगा, पूरा लॉजिक सेम. हियर इट विल फॉर्म ZnBr2, and once you get ZnBr2 plus CH3 and CH3, again we'll get what? Ethane. So this is called as Franklin. ऊपर वाला वुड्स रिएक्शन था, ये फ्रैंकलिन रिएक्शन है. वुड्स रिएक्शन आपके सिलेबस में है, फ्रैंकलिन रिएक्शन आपके सिर्फ नॉलेज और एंट्रेंस के लिए बता रहा हूं. इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. ओके, साथ में ही अगर हम लोग जिंक की जगह पे इफ यू यूज समथिंग लाइक कॉपर, अगेन दिस इज एन एक्स्ट्रा स्टफ, राइट? तो अगर कॉपर यूज करते हो तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा उल्मन रिएक्शन. एंट्रेंस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी बोर्ड के लिए तो आपको पूछेंगे नहीं, राइट? सो हियर यू विल गेट CuBr2, ओके, CuBr2 प्लस CH3. तो ये उल्मन रिएक्शन हो गया. तो वुड्स के जैसा ही है, फ्रैंकलिन के जैसा ही है उल्मन रिएक्शन. तीनों एक ही फॉर्मेट वाले रिएक्शंस है, राइट? बीच में मेटल ऐड कर रहे हैं. ऑल दीज आर, और टाइटल हमारा क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हैलोअल्केन. तो अलग अलग मेटल हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं. कॉपर हम लोग ने रिएक्ट किया, जिंक हम लोग ने रिएक्ट किया, सोडियम हम लोग ने रिएक्ट किया, और ऊपर वाले रिएक्शंस में इफ यू सी मैग्नीशियम हम लोग ने रिएक्ट किया टू फॉर्म हैलोअल्केन. तो अब ये अलग अलग मेटल्स रिएक्ट करने के बाद नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट थिंग, दैट इज फिटिग रिएक्शन. एक्चुअली टेक्निकली अगर बोला जाए तो फिटिग रिएक्शन हैलोअरीन्स में आएगा, हैलोअल्केन्स में नहीं आएगा. बट क्योंकि ये सेम टू सेम वुड्स के जैसा है, ठीक है, वुड्स के साथ में बहुत सिमिलरिटी शेयर करता है, इसके लिए मैं इसको यहीं पर ले रहा हूं, हैलोअल्केन्स में ही ले रहा हूं, ठीक है. और हमको एक कॉम्बिनेशन भी करना है वुड्स फिटिग, इसके लिए भी वजह है कि हैलोअरीन्स में आने के बावजूद में मैं इसको हैलोअल्केन्स में ले रहा हूं, ठीक है. तो फिटिग रिएक्शन इज समथिंग लाइक दिस. वी टेक क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na, सेम टू सेम वुड्स के जैसा,
वुड्स में भी सोडियम था, राइट, एंड इंस्टेड ऑफ CH3Cl वी हैव टेकन क्लोरोबेंजीन। ओके, तो क्लोरोबेंजीन में फिर अभी 2Na and 2Cl आर गोना कंबाइन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ऑफ कोर्स, क्योंकि सोडियम यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यू विल गेट व्हाट 2NaCl, और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, गांधी जी का चश्मा बनेगा, देखो। दिस इज कॉल्ड एज बाइफिनाइल, ठीक है, याद रखने के लिए गांधी जी का चश्मा, राइट। सो दिस इज व्हाट बाइफिनाइल, दोनों कनेक्ट हो गए, दो क्लोरोबेंजीन्स कनेक्ट हो गए टू फॉर्म व्हाट बाइफिनाइल। अच्छा, फिटिक रिएक्शन समझ में आ गया आपको, ऑफ कोर्स। फिटिक रिएक्शन के बाद में नाउ वी आर गोना मूव ऑन टुवर्ड्स वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि वुड्स और फिटिक का कॉम्बिनेशन इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। मतलब एक पार्ट में एक हैलो अल्किन लेंगे, मतलब वुड्स का पार्ट हो गया, दिस इज वुड्स वाला पार्ट, प्लस 2Na विच इज कॉमन इन बोथ वुड्स एज वेल एज फिटिक, और यहां पे आप ले लोगे फिटिक वाला पार्ट। फिटिक में क्या था, अरीन था, हैलो अरीन था, क्लोरोबेंजीन था, राइट। अगेन ड्राई ईथर रहेगा एरो पे बिकॉज यू यूज सोडियम, 2Na and 2Cl, right? You must have already guessed the product. It's going to be below CH3 connected with the benzene ring to form what? Toluene, rather phenyl ring. Okay, so क्या बनेगा? Toluene, also called as methyl benzene. Okay, so here we have finished the reaction with metals. This was the last part that was remaining in halo alkanes. Okay, मतलब केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट। अब कुछ और पार्ट ऐसा है कि यूजेस आपको पता होना चाहिए कि हैलो अल्केन्स इतना सब क्यों पढ़ा हम लोग ने। हैलो अल्केन्स पढ़ा हम लोग ने बिकॉज हैलो अल्केन्स आर हैविंग आई मीन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट यूजेस। जैसे हैलो अल्केन्स आर यूज्ड एज एनास्थेटिक्स, दे आर यूज्ड एज, जैसे कि क्लोरोफॉर्म आपने मूवीज में देखा होगा, ब्राउन कलर की बॉटल, व्हाइट कलर का रुमाल ऐसे डालते हैं, नाक में लगा देते हैं, राइट। सो वो बेहोश हो जाता है, दैट एनेस्थीसिया के तौर पे काम में आता है। बट अभी क्लोरोफॉर्म ह्यूमंस के लिए यूज नहीं कर रहे फॉर एनेस्थीसिया, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर एनिमल्स एज एन एनेस्थेटिक। ओके, सो हैलो अल्केन्स आर यूज्ड एज एनेस्थीसिया। अभी क्लोरोफॉर्म की जगह पे वी आर हैविंग बेटर एनेस्थेटिक्स लाइक डेसफ्लूरिन, एनफ्लूरिन, फ्लोरीन के डेरिवेटिव्स है। ओके, तो दीज आर द लेटेस्ट एनास्थेटिक्स, जो कि इसके जो डिसएडवांटेजेस थे, पोस्ट ऑपरेटिव पेन वगैरह होता है क्लोरोफॉर्म के साथ में, एपनोइया होता है, जो कि ये जो नए हैलोथेन भी एक नाम है, ओके, ये नए एनास्थेटिक्स जो है इनमें ये प्रॉब्लम नहीं होता, एंड दे आर वेरी गुड एज एन एनास्थेटिक। ओके, ये गैसियस है सारे स्ट्रक्चर में, मतलब उनका जो नेचर है वो गैसियस है। अच्छा, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग यूज्ड एज एन anesthetic, it is also acting as a very good solvent. It is also used, halo alkenes are also used for making of dyes. कुछ डाइज बनाने के लिए भी हैलो अल्केन्स को यूज किया जाता है। इसके अलावा हैलो अल्केन्स आर आल्सो यूज्ड एज प्रोपेलेंट्स। मतलब पहले आपने सुना होगा ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि बैन हो गया, फ्रिज में वगैरह यूज होता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसी में, फ्रिज में, राइट। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका एक एग्जाम्पल है, मतलब इट इज यूज्ड एज अ प्रोपेलेंट एंड वो भी हैलो अल्केन है। उसका एग्जाम्पल है फ्रीऑन, आपको याद रखना है। तो फ्रीऑन में we are going to connect, it's like 1,1 dichloro difluoro methane, राइट। एक मीथेन मतलब एक कार्बन, उसको दो फ्लोरीन लगा दो, दो क्लोरीन लगा दो, क्या बन गया? फ्रीऑन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्यों बोलते हैं इसको, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, ये क्लोरो, ये फ्लोरो और ये कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज अ प्रोपेलेंट, और एक ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड, व्हाई इट इज केप्ट इन ब्राउन कलर्ड बॉटल्स। सो इट इज केप्ट इन ब्राउन कलर्ड बॉटल्स क्योंकि इट कैन रिएक्ट विद सनलाइट। सनलाइट के साथ अगर रिएक्ट कर लिया तो इट फॉर्म्स अ वेरी डेंजरस gas which is called as phosgene. ये toxic gas है, right? It is a toxic gas. Hence we store chloroform in amber colored bottles, brown colored bottles, जिसमें sunlight directly नहीं जाएगा। अगर sunlight directly इसके साथ में react करता है तो it forms phosgene which is a poisonous gas. ठीक है, तो आपको अभी कुछ होमवर्क भी है, आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज टीयर गैस। फाइंड आउट करो व्हाट इज टीयर गैस, जो इसको आंसू बॉम्ब भी बोलते हैं। जैसे मॉब वगैरह अगर प्रेजेंट हो कहीं पे, बहुत हल्ला कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, छोड़ देती गवर्नमेंट, उनको ऑर्डर करती पुलिस को, पुलिस स्टोर छोड़ देती है, ये आंसू बॉम्ब ऐसा व्हाइट कलर का धुआं धुआं निकलता है, आंखों में इरिटेशन होने लगता है, लोग भाग जाते हैं वहां से, डिस्पर्स हो जाते हैं। मॉब डिस्पर्सल के लिए यूज किया जाता है टीयर गैस। फिर टीयर गैस क्या है, वॉर गैस क्या है, ये आप थोड़ा फाइंड आउट करो, ठीक है। और एक रिलेटेड कंपाउंड जो कि बेसिकली अल्डिहाइड्स में आता है, ओके, व्हिच इज कॉल्ड एज क्लोरिल। ओके, तो क्लोरिल हैलो अल्केन भी है और अल्डिहाइड भी है, तो इट इज लाइक CCl3, CCl3CHO,
मतलब ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। इसको अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, CCl3 CHO को ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, हैलो अल्किन का भी ग्रुप है। तो इसके लिए हैलो अल्किन में मतलब चैप्टर हैलो अल्किन, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पर एक क्लोरल का स्ट्रक्चर भी इंक्लूड कर लिया। ओके, सो दैट्स इट फॉर हैलो अल्केन्स। अब अगर आपका ये पूरा हो गया है तो गो फॉर हैलो अरीन्स। हैलो अरीन्स के 5 वीडियोस रेडी है, थोड़ा अपडेट्स कर रहा हूं उसमें भी, आप फोकस करो एंड गो थ्रू फॉर रिवीजन। यू कैन watch all the videos at 2x or at least 1.5x.